سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ اکھاڑہ، شیخوپورہ، مرید کے قاموکی کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.4 ریکارڈ، زلزلے کی گہرائی 14 کلومیٹر تھی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔ بالکل جی، اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور ان کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اگرچہ زلزلے کی شدت تو بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن obviously زلزلے کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی اور زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے مطابق زلزلے کی گہرائی 14 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز لاہور کے جنوب مغربی علاقے میں ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کے ارد گرد سے شیخوپورہ اور ان شہروں میں جو ہے فالٹ لائن کی موجودگی جو ہے وہ اس کا پہلے بھی انکشاف ہو چکا ہے، تو کبھی کبھار یہ فالٹ لائن میں سے کوئی نہ کوئی فالٹ لائن ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو اس طرح زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ آج بھی لاہور کے جنوب مغربی علاقے میں ایک فالٹ لائن جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی اور اس کے نتیجے میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے اور لاہور کے جنوب مغربی علاقے میں تقریباً یہ 25 کلومیٹر دور لاہور سے اس کا مرکز جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی ایم پنجاب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جن شہروں میں زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، زلزلے کی اطلاعات ملی ہیں، وہاں پر نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور اللہ کرے کہ نہ ہی کسی نقصان کی اطلاع ملے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے چونکہ زلزلے کی شدت بہت کم تھی، تو اس لیے امید رکھی جانی چاہیے کہ کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہوگی، سب بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن مزید اس کے لیے جو ہے وہ ابھی آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 8.36 اضافے سے 266.79 ہو گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272.98 مقرر ہوئی ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت کو پیٹرول سستا کرنا چاہیے، مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کر رکھا ہے۔ تفصیلات زاہد عابد سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے زاہد۔ جی بالکل، اوگرا کے طے شدہ فارمولے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر رد و بدل کیا گیا ہے۔ 1 جولائی کافی بھاری گزرا ہے پیٹرولیم مصنوعات استعمال کرنے والوں پر، کیونکہ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر سے زیادہ اور پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جس پر رات 12 بجے سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس پر یقینی طور پر جو پیٹرولیم مصنوعات استعمال کرنے والے صارفین ہیں وہ کسی حد تک مایوس بھی نظر آتے ہیں، غصے میں بھی نظر آتے ہیں کہ اس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ہے۔ جی مجھے بھی صبح پتہ چلا تو میں خود پریشان ہوا ہوں کہ ایک دم سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے جا رہی ہیں روز بروز، تو اس لیے میں خود پریشان ہوا کہ 8 روپے اور بڑھ گیا۔ یہ کچھ اور لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ذرا ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ بردر، پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے، 8 روپے سے بھی زیادہ، 267 روپے 70 پیسے قیمت ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ سر اس پہ میں کیا کہوں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ انہوں نے بیسیکلی جو بھی ہے اپنی مرضی سے بڑھا دیا، ہم نے اپنی مجبوری کے جتنے ہوں گے اتنے ڈلوا لیں گے۔ اب یہ کہاں پہ جب ہم 10 لیٹر ڈلواتے تھے وہاں پہ 2 لیٹر ڈلوا لیں گے، اب یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، عوام بالکل ایک مایوسی کے عالم میں نظر آتے ہیں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، یقینی طور پر ان کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ پیٹرول موٹر سائیکل استعمال کرنے والوں کے اخراجات میں، اور خاص طور پر ڈیزل جب مہنگا ہوتا ہے تو اس سے مہنگائی کا ایک اور سیلاب بھی آتا ہے، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کرائے بڑھ جاتے ہیں۔ ڈیزل کے استعمال سے ٹرانسپورٹیشن جو بار برداری ہوتی ہے، جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، جس سے ایک مہنگائی کا ایک اور طرح کا سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ لیکن بظاہر اس وقت فوری طور پر جو ہے جو پیٹرول استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ مایوس نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو اقدام کیا گیا ہے، اگر اس کا بھی اور حل نکال لیا جاتا، کہیں اور سے پیسے اکٹھے کیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، ورنہ ان کی مشکلات میں تو پہلے بھی اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور آج پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صاحب۔ عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر نالاں، کہتے ہیں مہنگائی کے باعث زندگی کا پہیہ چلانا بہت مشکل ہو چکا، حکومت کو پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر کرنی چاہیے۔ غریب آدمی، تنہا طبقہ آگے ہی مہنگائی کے اس میں پیس چکا ہے، آگے سے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، بجلی کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرول کے خرچے بڑھ گئے ہیں،
चीनी देखो कितनी बढ़ गई हैं, कोई इसको हुकूमत को कोई होश का नहीं। इतने बड़े बड़े हमारे मईशतदान नहीं कुछ बता पा रहे, हम क्या बताएंगे कि अब ये सबको भी पता है कि यार क्या हालात हैं मुल्क के लोगों के, क्या परचेजिंग पावर नहीं है, उसके बावजूद लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। पहले तो देखे था जितने भी 70-80 भी लीटर होता था 250 तक, बड़ी आती है 200 तक लीटर काफ़ी है, इतना महंगा नहीं, इससे ज़्यादा क्या महंगा होना है। चीज़ पेट्रोल से लिंक है, तो पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो ओबियसली महंगाई पे उसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम करे और बिलों पर भी कोई जो बिजली के बिलों पर जो मामला आते हैं 200 यूनिट से ज़्यादा होते हैं, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। अकेडमीज़ वगैरह कॉलेज जाना पड़ता है जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अखराजात बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल बढ़ाना मैटर नहीं करता कि आप जस्ट पेट्रोल को बढ़ा दें, उसके साथ बिजली महंगी कर दें, उसके साथ हर चीज़ महंगी कर दें। जस्ट गुजारिश ये है कि आप अपनी इकॉनमी बेहतर करें, आप किसी और चीज़ को उसमें एडजस्ट करें। आप ऑलरेडी बिजली में कर चुके हैं, लेविस टैक्स में कर चुके हैं, तो अभी आप फिर 8 रुपये 9 रुपये अपना पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। बस ये ऐसा ही करते, 2 रुपये कम करेंगे और 10 रुपये बढ़ा देंगे, और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। इसी तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी, ज़रा पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी, तो नहीं करना चाहिए इस तरह से। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई थोड़ा गरीब का भी ख्याल रखें। वफाकी हुकूमत का नए माली साल के आगाज़ के साथ ही अवाम पर नए टैक्सेस का नफास। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद किया गया है। इससे कबल पेट्रोल पर फ़ी लीटर 78 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की जा रही थी। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से, बताइए जाहिद। में ये चीज़ क्लाइमेट अगर हुकूमत पाकिस्तान ये तो अपने तौर पर भी कुछ होंगे जिसके लिए क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी तजवीज़ की गई थी, ताकि इससे जो आमदनी हो उससे माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा सके और मुख्तलिफ चीज़ों को किया जा सके, जिसके तहत 1 जुलाई से नए बजट का जब आगाज़ हुआ है तो 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद कर दी गई है। ताहम इसको एडजस्ट किया गया है। पेट्रोलियम लेवी जो पहले ही ली जा रही है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसमें से 2 रुपये 50 पैसे कम करके 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी की सूरत में कर दिया गया है। इस एडजस्टमेंट के तहत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रायलर माफिया एक बार फिर सरगर्म, ब्लैक में फरोख्त शुरू। सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी का गोश्त सस्ता, मार्केट में महंगाई हो चुकी है। जिंदा ब्रायलर की होलसेल कीमत 284 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 300 रुपये तक बेचा जा रहा है। अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 245 रुपये हो गई। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी रेट लिस्ट देखी जाए पोल्ट्री मसनूआत की तो उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है। 14 रुपये फ़ी किलो सस्ता करके ब्रायलर गोश्त जो है 432 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई। इसी तरह ज़िंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपये तक कमी की गई है। फार्म गेट रेट ज़िंदा ब्रायलर का 270 रुपये, होलसेल ज़िंदा ब्रायलर 284 रुपये, जबकि परचून बाज़ारों में ज़िंदा ब्रायलर जो है 298 रुपये फ़ी किलो तक जो है मुकर्रर किया गया है। लेकिन मार्केट की सूरत हाल ये है कि ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है या मंडी जो है वो अब तक जो है ब्लैक में की जा रही है, यानी कि मार्केट में ज़िंदा ब्रायलर जो है वो महंगा हो रहा है, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट में जो ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो 10 रुपये तक, ज़िंदा ब्रायलर की कीमतें 10 रुपये तक कम की गई हैं। हमारे साथ जो है ब्रायलर के ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खलीफा साहब ये बताइएगा कि ब्रायलर की कीमतें तो आज कम हुई हैं, मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी देखें जी, ये हमें इनकी समझ नहीं लग रही। मंडी तो इतनी तेज़ है, 300 रुपये मुर्गी सेल हुई है, लेकिन लिस्ट में इन्होंने कमी कर दी है। इस फ़लसफे का हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि मंडी तेज़ होगी तो लिस्ट में भी रेट तेज़ होगा। मंडी तेज़ है, लिस्ट में रेट कम इन्होंने कर दिया। जब कम होता तेज़ कर देते हैं। इनका जो है ना वो पता नहीं चल रहा कुलिया क्या कर रहे हैं। ये तकरीबन जी आज 3-4 दिन हो गए हैं, इसी तरह ही तेज़ी है, लेकिन लिस्ट में रेट जो है ना वो कम है। हाँ जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो ज़िंदा ब्रायलर की कीमतें हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि मंडी में जो सप्लाई किया जा रहा है ज़िंदा ब्रायलर की कीमतें
اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے یا بلیک میں جو ہے فروخت کی جا رہی ہیں، لیکن آج حیران کن طور پر انتظامیہ کی جانب سے جو برائلر گوشت کی سرکاری ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں برائلر گوشت 14 روپے اور زندہ برائلر جو ہے 10 روپے فی کلو تک کم کیا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے 4000 سے زائد یونین کونسلز کے لیے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت اختیارات تفویض کیے گئے۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے اسامہ، لاہور سمیت پنجاب بھر کی 415 یونین کونسل کے لیے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے سیکشن 185(1) کے تحت اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں یونین کونسل کے قیام کے شیڈول پوسٹوں کی منظوری دی گئی ہے جس میں تنخواہ الاؤنس کی ادائیگی میں شامل اخراجات یونین کونسل کو صوبائی مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے ادا کیے جائیں گے، جبکہ یونین کونسل میں سیکریٹری اور نائب قاصد یا چوکیدار کی ایک سیٹ رکھ دی گئی ہے، جبکہ ضلع میں یونین کونسل کے سیکریٹریز کو کوٹا مقرر کیا گیا جس میں سیکٹری گریڈ 16 کا 15% کوٹا مقرر کیا گیا، اسی طرح گریڈ 14 کے لیے 14% اور گریڈ 11 کے لیے 45% سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ یونین کونسل میں بی ایس گریڈ 16 کے 602، بی ایس 14 کی 1606 اور بی ایس 11 کی 1807 سیٹیں مختص کر دی گئی ہیں۔ یونین کونسل ملازمین کے لیے سروس رولز اور سروس اسٹرکچر کا نوٹیفیکیشن کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کا معاملہ، اپوزیشن کو ایوان میں طوفان بدتمیزی برپا کرنا مہنگا پڑنے لگا۔ اپوزیشن کے معطل شدہ 26 اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز۔ معطل اراکین کی رکنیت ختم کرنے کے لیے اسپیکر آفس کی وزارت قانون سے مشاورت جاری۔ اسپیکر آفس کا ریفرنس عاشورہ کے بعد بھجوائے جانے کا امکان۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی بتائیے حمزہ۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو ہنگامہ آرائی کرنا مہنگا پڑنے لگا ہے۔ اپوزیشن کے معطل ہونے والے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ معطل ہونے والے 26 ارکان کی رکنیت ختم کرنے کے لیے اسپیکر آفس کی صوبائی وزارت قانون سے تفصیلی مشاورت جاری ہے، جبکہ اسمبلی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ معطل 26 ارکان کی رکنیت پارلیمانی لیڈر کے فیصلہ کے خلاف ورزی کرنے پر ختم کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ اسمبلی ذرائع کا بتانا ہے کہ اسپیکر آفس نے اس سلسلہ میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حمزہ شہباز کی خلاف دیے جانے والے فیصلہ کی نظیر کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ اسپیکر آفس اس سلسلہ میں ریفرنس عاشورہ کے بعد بھجوائے جانے کا امکان ہے، جبکہ اسمبلی ذرائع کا بتانا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سینئر قانون دانوں سے مشاورت بھی جاری ہے، جبکہ ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے فیصلوں کی نظیر پہلے ہی موجود ہے۔ یہ کہنا تھا گزشتہ روز اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد ابند خان نے کہا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی حمزہ شہباز کے خلاف دیے جانے والے فیصلے کی نظیر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، قانونی چارہ جوئی جلد کریں گے۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے پراپرٹی ریٹس میں اضافہ آج سے نافذ کر دیا گیا ہے۔ جائیداد کی منتقلی پر سالانہ ڈی سی ریٹس 5% بڑھا دیے گئے ہیں۔ فروخت کنندہ جائیداد کی فروخت پر وفاقی 4.5% ادا کرے گا۔ 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا۔ آج سے شہری نئے پراپرٹی ریٹس کے مطابق جائیداد منتقل کروائیں گے۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے اس بارے۔ سما دیکھیں، لاہور میں صوبہ بھر میں پراپرٹی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے جس میں ڈی سی پراپرٹی ریٹس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جائیداد کی منتقلی پر سالانہ ڈی سی ریٹس 5% بڑھا دیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں وفاقی ٹیکس جو لگایا گیا ہے جس میں فروخت کنندہ جائیداد کی فروختی پر وفاقی 4.5% ٹیکس ادا کرے گا، اور اسی طرح خریدار پراپرٹی کی خریداری پر وفاقی 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج سے شہری نئے پراپرٹی ریٹس کے مطابق جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے جو ہے وہ نئے پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جائیداد کی جو منتقلی ہے وہ آج سے نئے ریٹس کے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت میں آسمان پر بادلوں کا بسیرا، 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا سے موسم خوشگوار، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 33 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی بارش کی بھی پیش گوئی۔ موسم کے احوال جان لیتے ہیں زین علی سے۔ بتائیے زین۔
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का जो मौसम है इस वक्त हवा चलने के बायस इंतहाई खुशगवार हो चुका है। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके बाद लाहौर में जो है वो हब्स का ज़ोर जो है वो टूट चुका है। जबकि दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम अज़ कम 27 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ अगर बारिशों की बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है, जिसके इम्कानात जो है वो 40% तक बताए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून के एक और स्पेल की जो है वो पेशन गोई की गई और मानसून के स्पेल का जो है वो तकरीबन आइंदा हफ्ते तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो बारिश देखने में आ रही है कि लाहौर में जो है वो दिन भर वक्फे के साथ बारिश देखी जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ चलने वाली हवा के बायस लाहौर में जो हब्स थी उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ोर टूट चुका है। इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 76% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा के बायस लाहौर का जहाँ मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर शहरियों ने हब्स का ज़ोर टूटने पर जो है वो खुशी का भी जो है वो इजहार किया है। आपका शुक्रिया ज़ैन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश के बायस दरिया रावी की भी सुनी गई। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 9000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। दरिया में पानी की सूरत हाल बारे तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखें, दरिया जेहलम, चनाब और सिंध में तो पानी की आमद का सिलसिला चलता ही रहता है, अगरचे इसमें उतार चढ़ाव भी आता रहता है, लेकिन पानी की आमद बहरहाल चलती रहती है और इन अय्याम के दौरान तो पानी की आमद में काफ़ी इजाफा हो जाता है और अब इजाफा रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। लेकिन जो खुशी दरिया रावी और दरिया सतलुज में पानी को देखकर होती है ना, वो बयान से बाहर है। इसकी वजह यह है कि सिंतास मुआहदे के मुताबिक अब इन दोनों दरियाओं पर भारत का हक़ है, बल्कि 3 दरियाओं पर भारत का हक़ है जो 3 मशरकी दरिया कहलाते हैं। इनमें दरिया ब्यास भी शामिल है जो सरहद से परे ही दरिया सतलुज में शामिल होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है और भारत का कंट्रोल होने की वजह से इसके पानियों पर साल के बेशतर औकात में ये दरिया खुश्क ही रहते हैं। लेकिन अब जो मानसून का आगाज़ हुआ है तो ये दरिया कम अज़ कम दरिया रावी तो खुशी से निहाल दिखाई देता है कि इसमें पानी की आमद में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन दरिया सतलुज अभी तक इस इंतज़ार में है कि कुछ उसके भीगने का भी इंतज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। और मैं इस वक्त चूँकि शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 9000 क्यूसिक के करीब पानी चल रहा है और ये तमाम पानी दरिया का नहीं है, बल्कि इसमें रावी मराला लिंक कैनाल का पानी भी शामिल है। अगर दरिया के ओरिजिनल पानी का अंदाज़ा लगाना हो तो फिर जसड़ के मुकाम पर जो पानी चलता है वो दरिया का ओरिजिनल पानी होता है, क्योंकि जसड़ के मुकाम से ही दरिया रावी भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। गुज़श्ता दिनों तो वहाँ पर भी पानी की आमद जो है वो तकरीबन 9000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई थी और अब इसमें थोड़ी सी कमी रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि इसके बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्ती तौर पर कमज़ोर हो गया है। अभी तो मानसून का आगाज़ ही है और जैसे जैसे मानसून के दौरान बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा तो दरिया रावी में पानी की आमद में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए खसूसी इक़दामात स्पेशल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत सामने आई है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए इख्तराई कदम सामने आया। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खसूसी इक़दाम किए गए, नया सिस्टम नाफिज किया गया, स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया गया और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने हम फैसला किया कि मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया अकाउंट पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग जारी है और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। शब मुहर्रमुल हराम के दौरान सुबह भर में पहली मरतबा साइबर पेट्रोलिंग का आगाज भी कर दिया गया है। काबिल एतराज सोशल मीडिया मवाद की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए PITB का खुसूसी पोर्टल भी फाल किया गया है और स्पेशल सेल में मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत और मुस्लिम सोशल मीडिया मवाद की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है।
पोर्टल पर मुतनाज़िर मवाद की रिपोर्टिंग के बाद अकाउंट की बंदिश और अकाउंट होल्डर को तेज किया जाता है। वज़ीर आला मुरीद नवाज शरीफ की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत की और मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी महफूज बनाने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की गई है। जलसों के दौरान सिक्योरिटी के लिए चारों अतराफ जो है आईनी पाइप की तरतीब की गई। मुहर्रम के हर जुलूस के दाखिली गेट पर खसूसी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। आने वालों को चेहरों से शनाख्त होगी और मजालिस और जुलूसों में खवातीन इज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस सरकार और अफसर तैनात किए गए हैं। आपका शुक्रिया हसन। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर का ताजपुरा में ज़ेरे तमीर वासा वाटर डिस्पोजल टैंक का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा ने ब्रीफिंग दी। वासा को मानसून से मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत है। आपको बता रहे हैं कि वासा को मानसून से मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए जा रहे हैं। ताजपुरा में ज़ेरे तमीर वासा वाटर डिस्पोजल टैंक का यह दौरा है DC की जानिब से, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शालामार और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा ने ब्रीफिंग दी है। वासा को मानसून से मुतालिक तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और इस हवाले से वासा को तमाम इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त एक्टिव नज़र आती है, जबकि DC की जानिब से मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए जा रहे हैं और इसी हवाले से ये एक अहम दौरा है। डिस्पोजल स्टेशन के हवाले से उन्होंने तमाम इक़दामात मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं, जबकि काम के हवाले से और उस पर पेशरफ्त के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें ब्रीफ भी किया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार और डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा की जानिब से DC को ब्रीफिंग दी गई है। DC का ताजपुरा में वाटर टैंक का दौरा है और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल ज़्यादा बारिश होगी, अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं और वासा वो इदारा है जो इस हवाले से तमाम इक़दामात करता है। ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव नज़र आ रही है ताकि पानी की निकासी के लिए इक़दामात किए जा सकें। पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना के इलाज मुआलजे के लिए मज़ीद 23,45,000 के फंड जारी किए गए हैं। कांस्टेबल ज़काउल्लाह को छाती के मर्ज़ के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि ASI शाहिद अल्वी को 2 लाख और ASI जावेद अख्तर को 1 लाख रुपए दिए गए हैं। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जान लेते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस और उनके अहले खाना के सर्विस के लिए मज़ीद इक़दाम किए गए हैं। IGP पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाज़मीन और इनके अहले खाना के इलाज मुआवजे के लिए मज़ीद 23,45,000 रुपये के फंड जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी कांस्टेबल ज़काउल्लाह को छाती के मर्ज के इलाज के लिए 5 लाख रुपये के फंड दिए गए हैं। इस तरह शहीद ट्रैफिक असिस्टेंट डॉक्टर अली खां की अहलिया को जिगर की मौजूद बीमारी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये दिए गए। ASI मोहम्मद शाहिद अल्वी को दिल के आर्जे के इलाज के लिए 2 लाख रुपये के फंड जारी किए गए हैं। दफ्तरी मोहम्मद अरशाद को आंखों के इलाज मुआवजे के लिए 2 लाख रुपये के फंड दिए गए। कानपुर तसव्वुर अब्बास को गुर्दे की मौजूद बीमारी के इलाज के लिए 2 लाख रुपये के फंड जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मुबशर अली मोहम्मद असलम को इलाज मुआवजे की मद में फीकत जो है 1 लाख रुपया दिया गया है। कांस्टेबल मोहम्मद रमजान ड्राइवर कांस्टेबल सख्तर जमीन को इलाज मुआवजे के लिए फीकत जो है 1 लाख रुपये के फंड जारी किए गए हैं। ASI जवेद अख्तर कांस्टेबल अब्दुर्रऊफ और ड्राइवर कांस्टेबल यासर देव को इलाज मुआवजे के लिए मजमूई तौर पर 3,05,000 रुपये के फंड जारी किए हैं। IGP पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट कमेटी की सिक्योरिटी के बाद फंड अजरा की जो है वो मंजूरी दी है। IGP पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि मुख्तलिफ अदालों के साथ MOU के तहत भी मुलाजमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। फूड सेफ्टी टीमों का वादत रोड समनाबाद सभागार में ऑपरेशन 19 मारूफ फूड चेन आउटलेट्स की चेकिंग की है, जबकि 9 फूड पॉइंट्स को 9,30,000 के जुर्माने आए। एक्सपायर अशिया, इस्तेमाल शुदा ऑयल, बासी अज्जा और तैयार खुराक की बड़ी तादाद तल्फ कर दी गई है। फूड अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौरियों को साफ़ सुथरी खुराक पहुँचाने के आज़म पर इस वक्त फूड अथॉरिटी अमल पैरा है और इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी टीमों का वादत रोड समनाबाद सब बाज़ार में ऑपरेशन जारी है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की प्रिवेंशन इंटेलिजेंस सेंटर आबाद महकमे दाखिला में कायम मरकज़ी कंट्रोल रूम से जुलूसों और मुजालिस की लाइव मॉनिटरिंग की है।
ऑफिसर्स ने सुबह भर में मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफ किया। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मजीद जानते हैं, बताइए हसन। देखिए, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी की सुबह इंटेलिजेंस सेंटर आमद हुई, जहाँ पर महकमा दाखिला पंजाब में मस्जिद कंट्रोल रूम से सुबह भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर अफसरान ने सुबह भर में मौजूदा सूरत बारे तफसील की। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान 37,087 मजालिस और 9,825 जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम मजालिस और जुलूसों की को हसासियत के मुताबिक कैटेगरी ए, बी और सी में तकसीम किया गया है। पंजाब भर की मजालिस और जुलूसों की मैप पर जियो टैगिंग की गई है और तमाम मकामात को जदीद कैमरों से सेंट्रल कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब में 1,421 जाकिरीन और मुकर्रीन की जिलाबंदी और 809 की जुबानबंदी के अहकाम जारी किए हैं। सुबह भर में 1,10,000 पुलिस अफसरान और एहलकार को मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने कहा कि सिक्योरिटी ड्यूटी में पुलिस की इमदाद के लिए जो है आर्मी की 59 और रेंजर्स की 79 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अमन और अमान के क़याम के लिए पंजाब में 1,444 अफराद को शेड्यूल 4 में रखा गया है। पाक वतन में उस बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज शाम से पाक वतन में बहश्ती दरवाजा ज़ायरीन के लिए खोला जा रहा है। इसी तरह हजरत अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज और गुस्ल की तकलीफ मुहर्रम उल हराम को होगी, उसके इंतजाम के हवाले से भी तफसीली जायजा लिया और डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने कहा कि पंजाब भर में जाकर इंतजाम का जायजा लिया। तमाम इंतजामिया और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और तमाम मरकजी मजालिस और जुलूसों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और फिजिकल स्पेस के साथ साथ डिजिटल स्पेस को भी महफूज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ई पोर्टल पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम मालूमात जो है रियल टाइम अपडेट हो रही है और काबीना कमेटी बराए अमन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी ने सुबह भर का दौरा किया। डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका हसन। सेक्रेटरी औकाफ का दरबार हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दौरा, गुस्ल इंतजामात और मज़ार शरीफ की तामीराती कामों का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी औकाफ की दरबार शरीफ के डेवलपमेंट वर्क की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शी से। जी बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी औकाफ का हजरत दाता गंज बख्श के गुस्ल के इंतजाम की बर वक्त तकमील के सिलसिले में दाता दरबार का दौरा, जबकि पेश आमदा गुस्ल इंतजाम और मज़ार शरीफ की तमीराती और तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार ने गुस्ल मूर और ज़ायरीन के लिए सहूलत की फराहमी बारे ब्रीफिंग दी। जबकि सेक्रेटरी औकाफ ने की दरबार शरीफ के डेवलपमेंट वर्क की रफ्तार को मजीद तेज़ करने की हिदायत। जबकि इस मौका पर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि हुकूमत पंजाब गुस्ल इंतजाम से अहदा बुरा होने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। गुस्ल पर आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी, सफाई और लंगर के अमूर का शानदार एहतमाम किया जाएगा। दाता दरबार बर सगीर का सबसे बड़ा रूहानी मरकज़, ज़ायरीन के लिए हर मुमकिन सहूलियात को की फराहमी अवलीन तरजीह है। जी आपका शुक्रिया हमजा। और आपको बताएं कि पीएचए का शहर के अहम शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए नया इकदाम है। डीजी पीएचए मंसूर अहमद की हिदायत पर अहम शाहराहों पर बोगन वेलियाँ बेल लगाने का आगाज़ किया गया है और जेल रोड, गुलबाग, जबकि फिरोजपुर रोड समेत दीगर शाहराहों पर बेल लगाई जा रही हैं। पीएचए का शहर की अहम शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए नया इकदाम। डीजी पीएचए मंसूर अहमद की हिदायत पर अहम शाहराहों पर बोगनवेल या बेल लगाने का आगाज़। जेल रोड, गुलबर्ग, करशी रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर शाहराहों पर बेल लगाई जाएगी। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर की अहम शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए नया इकदाम किया है कि डीजी पीएचए मंसूर अहमद की हिदायत पर अहम शाहराहों पर बोगनवेल या बेल लगाने का आगाज कर दिया गया है। जेल रोड, गुलबर्ग, करशी रोड, फिरोजपुर रोड में दीगर अहम शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट पर ये बोगनवेल की शजरकारी की जा रही है। 6 से 8 फीट लंबी इस बेल को ग्रीन बेल्ट की जीनत बनाया जाएगा। अहम शाहराहों पर लाइटिंग पोल्स के साथ साथ ये बेलें लगाई जाएंगी और इससे शहर में होने वाली शजरकारी को एक नया रंग मिलेगा। गुलाबी, जामुनी, सफेद, नारंगी फूलों वाली बेल शहर को दिलकश बनाएगी। इसके अलावा ये बोगन बेलें हर किस्म के माहौल में आसानी से उगाई जा सकती है। शहर की खूबसूरती के लिए कम खर्च और देर पर पौधों को तरजीह दी जा रही है। डीजी पीएचए मंसूर अहमद राजा का कहना है कि हर सड़क और ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाया जा रहा है। पीएचए शहर की खूबसूरती के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन।
पंजाब की जेलों में डेवलपमेंट का तारीखी बजट रखा गया। पंजाब की जेलों में डेवलपमेंट के लिए 12 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस, जारी स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। रवा माली साल में 2 नई जेलें बनाने पर काम शुरू होगा। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में डेवलपमेंट के हवाले से तारीखी बजट जो है वो रवा माली साल में रखा गया है। जेलों में डेवलपमेंट की मद में 12 अरब रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। जारी स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए के फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल में लाहौर समेत पंजाब में 2 बड़ी जो है वो नई जेलें पर काम शुरू होगा। लाहौर में जो है वो प्रिजन कम्प्लेक्स बनाया जाएगा और सियालकोट में भी न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल जो है वो बनाई जाएगी। लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स में 7,000 कैदी रखने की जो है वो गुंजाइश होगी, जबकि सियालकोट में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल बनाई जाएगी वहाँ पर 4,000 कैदी रखने की जो है वो गुंजाइश होगी। लाहौर जो है वो गुलजानबाद जेलों की वजह से जो है वो मसाइल का सामना है, इस वजह से जो है वो बड़ा प्रिजन कम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त कैंप जेल और कोटला जेल दोनों में जो है वो गुंजाइश से 2 गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। और अजीज खानाजात की जो है अजीज जेल खानाजात मियां फरूख मजीद सबने जो है वो पंजाब हुकूमत को भिजवाई थी, जिसके बाद जो है वो लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स के लिए एक बड़ा बजट जो है वो मुख्तस किया गया है ताकि लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स बनाया जा सके और वहाँ पर जो है वो 7,000 कैदी रखने की जो है वो गुंजाइश होगी। इस वजह से अजीज जेल खानाजात मियां फरूख मजीद का कहना है कि जल्द जो है वो प्रिजन कम्प्लेक्स बनाने पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा। इस वजह से पंजाब हुकूमत ने बजट जो है वो मुख्तस कर दिया है और जल्द जो है वो इस पर जो है वो काम शुरू होगा। इस वक्त अगर बात की जाए कोलखपत और कैंप जेल में तो वहाँ पर गुंजाइश से 2 गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश है, लेकिन वहाँ पर 4,000 से ज्यादा जो है वो कैदी बंद है। इस तरह कोलखपत जेल में भी जो है वो तकरीबन 2,000 कैदी रखने की गुंजाइश है और वहाँ पर 5,000 के करीब जो है वो कैदी बंद है। इस मसले को हल करने के लिए जो है वो लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जॉब डिस्क्रिप्शन ना होने से महकमा एक्साइज के 22 ऑफिसर्स की मौजें, प्रमोशन के बाद से ऑफिसर्स ने कोई काम ना किया। महकमे की जानिब से जेडीज वाज़ेह न होने की वजह से ऑफिसर बगैर कोई काम किए दफ्तर में आराम करने लगे। 2 माह कबल महकमे की जानिब से 22 ऑफिसर को असिस्टेंट से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताएं आतिफ। जी बिल्कुल, 2 माह कबल महकमा एक्साइज की जानिब से जो 22 के करीब जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है और जो महकमा एक्साइज का एक्ट है उसमें डिप्टी डायरेक्टर के लिए अभी तक कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वाज़ह न होने की वजह से ये अफसरान जो है ताहाल कोई काम नहीं कर रहे और इनकी मौजें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ महकमा एक्साइज को जो है अफरादी कुव्वत का सामना है, अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है। इस वक्त जो हदफ दिए गए थे खासतौर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से वो पूरे नहीं हुए और इसकी वजह यही बताई जाती है कि अफरादी कुव्वत की कमी है। तो जो महकमा के मुलाजमीन हैं उनका भी यही मुतालबा है और माहिरीन का भी कहना है कि फौरी तौर पर महकमा एक्साइज को चाहिए कि जो 22 के करीब डिप्टी डायरेक्टर ओहदे पर प्रमोट हुए हैं इनकी कोई ना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और इस हवाले से फौरी तौर पर जो एक्साइज का सेक्रेटरीट है उसको काम करना चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन तय कर इन अफसरान को ड्यूटी देनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास महकमा औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे के एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। 8,000 एकड़ से ज़ायद अराजी काबज़ीन से वागुज़ार करवाने के लिए प्लान तैयार। महकमा औकाफ की तमाम अराजी की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत प्रेस हाउस में अहम इजलास हुआ। महकमा औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जों के खात्मे के एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई है, जबकि महकमा औकाफ की 8,102 एकड़ अराजी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुज़ार कराने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है, जबकि महकमा औकाफ के तमाम अराजी की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। जबकि इस मौका पर सरकारी इदारों के अराजी और वागुज़ार कराने के लिए इदारों के सरबराहान को खतूत दिए गए हैं, जबकि अराजी के लीगल केसेस जल्द निपटाने के लिए मुकम्मल फॉलो अप किया जाएगा। जबकि महकमा औकाफ के बोर्ड की मंजूरी की रिहायशी और रेंटल कब्जों वाली अराजी के हवाले से रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लाई जाएगी। जबकि इस मौका पर चौधरी शाफ़े हुसैन का कहना था कि औकाफ की जमीनों को वागुज़ार कराने के लिए
खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। महकमा औकाफ की ज़मीनों को नाजायज़ काबिज़ीन से वागुजार करा के अवाम के फलाही मनसूबों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जबकि उनका मज़ीद कहना था कि औकाफ की ज़मीनों पर सऊदी अरब के सरमायाकारी के ख्वाह हैं। पंजाब भर में औकाफ के ज़ेरे तमाम मसाजिद और मज़ारात की तज़ीन और आराइश की जा रही है। जबकि चौधरी शाफिर हुसैन ने मज़ीद कहा कि महकमा औकाफ की तरक्याती स्कीमों के लिए रवां माली साल के बजट में 3 अरब रुपए और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फरूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। समाअत का मजीद अहवाल अबू बकर तारिक से जानते हैं। बताइए अबू बकर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में समूह माहौलियाती आलूदगी के तदारक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत का डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जबकि अदालत ने कहा कि डायरेक्टर माहौलियात अदालती अहकाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट थे और अदालत ने वासा के सीनियर लीगल एडवाइजर मियां इरफान अकरम से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील देने का भी हुक्म है। जबकि अदालत ने कहा कि इंस्पेक्शन टीमें जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जबकि महकमा माहौलियात के लास्ट दौरान अब्दुल रहमान रिपोर्ट पेश की और धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबे में 11 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फरूक की दरख्वास्त पर समाअत की है और वासा के सीनियर लीगल एडवाइजर मियां इरफान अकरम समेत लॉ अफसरान अदालत में पेश हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेलवेज और अखुवत फाउंडेशन के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब जारी है। बराह रास्त लिए चलते हैं। तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, राय ताहिर साहब, IG रेलवे, बड़ी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है हमारा उनके साथ। फिर CO रेलवे यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई जो हमेशा खुद भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारी भीड़ कहती हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। और मेरे सबसे बढ़ के जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है वो हमारे कुली भाई हैं और मेहनत में अज़मत है। और हमने ये तहिया किया था डॉक्टर अमजद साकिब साहब, ये कोई 90 दिन 100 दिन की बात है। जो चीज़ें आप रिफॉर्म्स पाकिस्तान रेलवे में देख रहे हैं, ये कोई साल हाँ साल की बात नहीं है। और अभी मेरे अल्लाह ने चाहा तो 15 से 20 दिन या विद इन 30 डेज़ बड़े बड़े ऐसे MOU साइन होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान रेलवे की तकदीर को बदल देंगे। लेकिन मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ जो कब्ल वक्त ऐसी बात कर दें जो ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर मौजूद ना हो, जिस पर सिग्नेचर ना हो चुके हों, एग्रीमेंट ना हो चुका हो। और अब तक भी इस शहर का ये स्टेशन देखें, पिंडी के स्टेशन देखें, खानेवाल, मुल्तान, कराची, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे स्टेशनों में तब्दीली आ गई है, साफ़ सुथरा माहौल। 19 तारीख को यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बिजनेस ट्रेन की अपलिफ्टिंग का इफ्तिताह भी कर रहे हैं, एस्केलेटर लग गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है, बार बार वो जिक्र करना मुनासिब नहीं। आज अखुवत की बात है और अखुवत यही है जैसे भाईचारा, और इस भाईचारे में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। जो हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत है कि तकवे की बुनियाद पे बड़ा छोटा तो हो सकता है अल्लाह की नज़र में, लेकिन उसकी पूरी की पूरी मखलूक जो है वो बराबर है। लेकिन इसमें अपने आप रिलेटिव्स में देखें, अपने दोस्तों में देखें, कोई अमीर है कोई गरीब है, और ये सुन्नत अल्लाह की आखिरी वक्त तक जारी सारी रही क़यामत तक। न सारों ने अमीर होना है, न सारों ने गरीब होना है, किसी ने अमीर रहना है, किसी ने गरीब रहना है। गरीब हाँ, हमने एक वादा किया यहाँ पे आके, और CO को क्रेडिट जाता है रेलवे को, आमिर बलोच साहब को, कि हमने ये कहा था कि मजदूर की मजदूरी जो है नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसका पसीना खुश्क होने से पहले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास ज़िमनी बजट 2024-25 के 509 अरब 71 करोड़ से ज़ायद मालियत के 38 मुतालबात ज़र अपोजिशन की अदम मौजूदगी में मंजूर। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने आलमी योम जमहूरियत की मुनासबत से ऐवान में करारदाद पेश की जो कसरत राय से मंजूर हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास 4 घंटे 4 मिनट की ताख़ीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत शुरू हुआ। इजलास के आगाज में स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, जहां गालियां दी जाती हैं वहां ऐवान मुआज़िज़ नहीं हो सकता। पंजाब असम्बली में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ज़िमनी बजट 2024 से 25 के 509 अरब 71 करोड़ से ज़ायद मालियत के 38 मुतालबात ज़र पेश किए जो अपोजिशन की अदम मौजूदगी में मंजूर कर लिए गए। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था
था, हुकूमत ने पहली मर्तबा ज़िमनी बजट का 266 अरब तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया। इससे पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। शायद ये पहली दफ़ा हो कि हमारा 266.6 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती अखराजात हैं। आम तौर पे जो सप्लीमेंट्री बजट होते हैं वो नॉन डेवलपमेंट साइड पे खर्च किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने ऐवान में आलमी यौम जमहूरियत से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जिसका मतन था कि पार्लिमान जमहूरी निज़ाम में बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान को ऐवान का तकद्दुस पमाल नहीं करना चाहिए। ऐवान का तकद्दुस ये है कि दलील दी जाए और मुआफ़ी अलज़मीर बयान किया जाए। करारदाद अपोजिशन की अदम मौजूदगी में मुत्तफ़िका राय से मंजूर कर ली गई। इस साल आलमी यौम पार्लिमान का मौजू जमहूरियत के लिए मजबूत पार्लिमान है, जो इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि पार्लिमानी इदारे एक फ़ाल, शफाफ और जवाबदेह जमहूरियत के लिए कितने अहम हैं। जो इस करारदाद के हक़ में हैं वो हाँ कहें, जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो ना कहें। फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में है, हाँ वालों के हक़ में है। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान को मुबारकबाद पेश की और एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।